you're highly ambitious and at the same time you try a lot to do too much effort and yet you fail and always feel that आप जितना ज्यादा सोच रहे हैं उतना ही कम अचीवमेंट हो रहा है, तो let me tell you something what's going wrong here. For people who are highly ambitious and highly enthusiastic in terms of trying to finish up a certain kind of goal or achieve a certain number of hours of effectiveness in a day, if you're studying, आप चाहते हैं कि आप 12 घंटे पढ़ें, 14 घंटे पढ़ें. I have some people talking to me, some students talking to me who tell me कि सर हम 14 घंटे 15 घंटे पहले पढ़ते होते थे. We used to study for long hours and we were having great time. We were studying very well. We were having great marks also. अभी भी हम उतना ही पढ़ना चाहते हैं सर. That is exactly who we were. आज भी हम वही कर सकते हैं. The problem is a lot of patterns of yours have changed over that time from where you felt you were enthusiastic, or even if you today feel the need to having that level of enthusiasm and having that level of study hours so that you can do the achievement of the goal that is in front of you. Now there are two possibilities. एक, आपका गोल इतना नजदीक है जो आपको अचीव करना है. The target time available is less. So obviously, how would you do things? You try that you study more and more. So in that only, what you do is you try to keep high targets for yourself, which you feel you can achieve, but at the end of the day, you don't achieve any of it. You rather achieve almost half of it or even lesser than that. और वो भी पूरा का पूरा ऐसा नहीं है कि आपने 12 घंटे सोचा था तो आपने 6 घंटे पढ़ा और 6 घंटे आपने एक ही बार में पढ़ा फिर 6 घंटे पढ़ा ही नहीं. आप सारा दिन ड्रैग कर रहे हैं अपने आप को. You're almost sitting for the whole day with lot of breaks in between, with a lot of distraction in between, with a lot of non-focused sessions happening. While you're feeling the books are in front of you, you're not studying. The task is in front of you, you're not doing it. Now, what is the problem here? The problem is आपका high enthusiasm आपको kill कर रहा है और आपको burnouts दे रहा है, जिसकी वजह से every single day when there is non-accomplishment, it gives you a regret. So it pushes you all the way more to try it again and do it better than previous day. But the problem is your patterns have not changed. Your awareness towards non-accomplishment is there, but your awareness towards the fact that you're not focused enough is not there. Till the time you don't bring that awareness कि मेरा focus इतना है नहीं, मुझे उसे build करना पड़ेगा. So like आपको करना क्या पड़ेगा अब यहाँ पे? What you need to do is give yourself smaller time frames to achieve in a day. Not 12 hours, not 14, not 15, but maybe 7 hours. और वो 7 hours पहले 9 hours के बीच में achieve करने का target दो या 10 hours के बीच में achieve करने का target दो. Maybe you're getting up at 7 o'clock. 10 hours would finish at 5 o'clock in the evening. Give yourself a target to finish in those 10 hours, maybe 6 hours. 5 बजे तक 10 घंटे में अपने आप को टारगेट दो अचीव करने का 6 से 7 घंटे. अगर वो 6 घंटे 5 घंटे आपने अचीव कर लिए तो दिन के बीच में अभी भी 5-6 घंटे और पड़े हैं जो आप जिनमें से आप 3 घंटे और निकाल सकते हो, मे बी 4 घंटे और निकाल सकते हो, 2 घंटे निकाल सकते हो. तो अपने आप को डिवाइड कर दो डे में, और जैसे ही आप ये करोगे आपका जो आउटकम है वो बेटर होना शुरू हो जाएगा. यू कैन ऑल्सो डू वन थिंग. यू कैन स्टडी फॉर हाफ एन आवर और मे बी क्वार्टर एन आवर एंड टेक अ ब्रेक फॉर मे बी हाफ एन आवर. तो सवा घंटा के बीच में पौना घंटा पढ़ा और आधे घंटे की ब्रेक हुई. दोबारा सेम चीज की. जस्ट इमेजिन सवा घंटा 2.5 घंटे के बीच में पढ़ा कितना? 1.5 घंटा. 1 घंटे का ब्रेक हुआ, चलेगा, बट 45 मिनट्स फोकस टाइम होना चाहिए. वो आपको अपने हिसाब से टाइम डिवाइड करना पड़ेगा. आधा घंटा करोगे तो भी 3 घंटे में 2.5 घंटा फिर भी पढ़ लोगे. तो आप 10 घंटे के बीच में 5 घंटे तो पढ़ोगे ना ब्रेक लेके भी. तो दैट इज मोर एसेंशियल. लाइक you'll have to have time blocking or time boxing, and once you start to do that, it will start helping you build up your level of accomplishment, your level of achievement, and accordingly you can keep building it up and you can achieve more and more hours in the coming days. So आप कहेंगे कि सर मेरे पास ऑलरेडी कम टाइम बचा है एग्जाम्स देने के लिए, मेरा टाइम ऑलरेडी नजदीक है, 40 days, 50 days, something like that is available to me. How can I start experimenting? The problem is you're over enthusiastic, you want to achieve, you know that there is a burden on your head, but the problem is you're not focused, and every time you sabotage this situation, you end up screwing up. The burden keeps increasing every day, and that increase of burden is leading to a burnout, which is neither letting you study, giving you enough regret, and is not gonna make you actually become focused, क्योंकि आप aware सिर्फ non accomplishment की तरफ है. आप aware focus की कमी होना, distractions का बहुत ज्यादा होना, emotional imbalances की possibility, and multiple other factors maybe that you are facing, आप उनके प्रति aware नहीं है. तो aware होने का तरीका क्या है? Take down a paper, write on it problems you are facing on an everyday basis due to which you don't study. आप 10 घंटे बैठिए, आज 10 घंटे बैठ के आप डिसाइड करिए कि आपको 10 घंटे में 6 घंटे अचीव करने हैं, बट उसमें जो 4 घंटे आपके इधर उधर होंगे वो लिखिए, सारे के सारे कहां जा रहे हैं. 4 घंटे भी अचीव हुए तो 6 घंटे में लिखिए, पूरा दिन लिखिए कितना
कि इतना टाइम पड़ा, क्लॉक करिए अपने टाइम को, स्टॉप वॉच लगा के रखिए। जब आप ये प्रोसेस शुरू करेंगे तो क्या होगा, आपको वो एरियाज दिखने लग जाएंगे जो एक्चुअली आपका टाइम खा रहे हैं, जो एक्चुअली आपका टाइम ले रहे हैं। और जब आपको ये पता चलेगा, योर अवेयरनेस ओवर कमिंग फ्यू डेज विल गेट बेटर टुवर्ड्स टेकिंग अ डिसीजन टू नॉट डूइंग दोज थिंग्स व्हिच आर किलिंग योर इनिशिएटिव, व्हिच आर किलिंग योर एंथुसियाज्म, व्हिच आर किलिंग योर अकम्प्लिशमेंट। सो व्हेन यू विल बिकम अवेयर, तो ये आवर्स जो मे बी आज आप 5 अचीव कर पा रहे थे 10 घंटे में, वो रोज 1 घंटा, आधा घंटा, 20 मिनट भी इंप्रूव हुआ, तो विद इन अ वीक्स टाइम यू विल रीच टू अ पॉइंट वेयर यू विल बी एबल टू अचीव इजीली 8 to 10 hours. आई एम नॉट सेइंग टेक 20 days, 30 days और 1 month, क्योंकि टाइम नहीं है, टाइम लिमिटेड है ऑलरेडी। बट उसको सॉर्ट आउट करने का तरीका क्या है, हर 5 घंटे में 3 घंटे या 2.5 घंटे अचीव करने का टारगेट दो। 15 घंटे जाग रहे हो तो 7.5 घंटे अचीव करोगे। हर 5 में अगर 3 घंटे पढ़ रहे हो तो 9 घंटे तो अचीव करोगे ना 15 घंटे में। इतना बेसिक क्लैरिटी दे दो कि मेरे पास ब्रेक टाइम कितना अवेलेबल है बर्बाद करने के लिए, यूटिलाइज करने के लिए किसी चीज में, और मुझे पढ़ना कितनी देर है। वो टाइम ब्लॉकिंग करनी पड़ेगी आपको, विच इज ऑल्सो कॉल्ड टाइम बॉक्सिंग और फोकस सेशंस, विच मींस यू टेल योरसेल्फ आधा घंटा पढ़ेंगे, आधा घंटा ब्रेक, आधा घंटा पढ़ेंगे, आधा घंटा ब्रेक। ये करते करते एक पॉइंट आएगा, यूल बी लाइक 1 घंटा पढ़ेंगे, आधा घंटा ब्रेक, 1 घंटा पढ़ेंगे, आधा घंटा ब्रेक। फिर एक पॉइंट आएगा, यूल बी लाइक 1.25 से 1.5 घंटा पढ़ेंगे और आधा घंटा ब्रेक। फिर 10वें दिन तक पहुंचते पहुंचते हालत ये हो जाएगी, आप 1.5-2 घंटे बैठ के पढ़ पाएंगे और आपको 20-25 मिनट की, आधे घंटे की ब्रेक चाहिए होगी। तो जस्ट इमेजिन एवरी 2 hours इफ यू आर टेकिंग हाफ आवर ब्रेक, तो आपने 10 घंटे कितने में पढ़ लिए? बहुत कम टाइम आपका वेस्ट होगा उस केस में। Exactly what you need to do is becoming aware towards the areas which are doing the damage, in spite of becoming aware towards the fact कि मैं रोज गलती कर रहा हूँ। वो तो कर ही रहे हैं, आप हमेशा से कर रहे हैं। उसको सुधारने का तरीका यही है कि पहले ये देखें गलत हो क्या रहा है। वो गलत जब तक अवेयर नहीं होंगे, लिखेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, और वो 2-4 दिन लगातार करना पड़ेगा। जब you'll have a list, you'll know your yeses and nos, you'll know your priorities, you'll know आपको कहाँ पे अपने आप को रोकना है, कहाँ पे अपने आप को पुश करना है और कहाँ पे अपने आप को न्यूट्रल रखना है, so that your goals are achieved. And अगर मैं बात करूं आपके एग्जाम्स की जो सीए के होने वाले हैं, you still have enough time. 1 ग्रुप 2 ग्रुप जो भी है, आपके पास बहुत टाइम है। You'll have to strategize in a systematic manner. बहुत लोग सिर्फ 40 दिन के बीच में 2 ग्रुप निकालते हैं। अगर आपके पास 1 ग्रुप है तो इट इज मोर देन एम्पल टाइम, बट आपको अपने आप को फोकस अभी से करना शुरू करना पड़ेगा, तभी ये टाइम यूटिलाइजेशन बेटर होएगी। टाइम बॉक्सिंग करिए, लेसर टाइम का जो है अपने आप को टारगेट दीजिए, अपने अवेयरनेस इंक्रीज करिए टुवर्ड्स डिसिप्लिन एंड नॉन डिसिप्लिन्ड एरियाज, टुवर्ड्स फोकस एंड दोज एरियाज व्हिच आर किलिंग योर इनिशिएटिव, व्हिच आर टेकिंग अवे योर टाइम, योर लेजीनेस, योर प्रोक्रेस्टिनेशन, योर पार्किंसंस लॉ इश्यूज। उसके लिए वीडियो एक और है जो आपको बताएगी हाउ टू डील विद पार्किंसंस लॉ, एज वेल एज ऑपोजिट टू इट हाउ कंडेंसेशन लॉ totally helps you nail it in terms of utilizing your time and reducing your time to do things in a better manner. Till then, take care. If this helps you, let me know in the comments. And if you have any other problem that you're facing, again, let me know in the comments. I'll come up with a solution for that too. And if you subscribe or like the video, it helps us. It helps many other students also. Take care till then.